ابھی تاکہ ایک تقریباً 9 months یا 10 months ہوئے ہوں گے یا 10-11 months ہو گئے ہوں گے کہ میں ان کی براڈ پہ میں ان کو دیکھتی تھی، کبھی کبھی سامنے آ جاتے تھے تو میں ہنستی تھی آپ لوگوں کے اوپر نا کہ دیکھو کبھی میں گر گئی ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا. میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ میں بھی آپ کی طرح بائی برتھ احمدی نہیں ہوں، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایسی کون سی دلیل تھی کہ جس نے آپ کے دل کو بدل دیا؟ وہ تو چلیں ٹھیک ہے، آپ شروع سے سن رہی تھی، اہل سنت کے جو تھے مولوی اور وہ مبلغین جو تھے ان کو سن رہی تھی، لیکن ایسی کون سی ایک دلیل تھی جس نے آپ کا یعنی کہ بالکل مائنڈ آپ کا چینج کر دیا؟ کوئی صحیح دلیل اس ہوگی کے تو اوپر کہو میں نا. کیا کہوں؟ کوئی صحیح دلیل ہوگی تو کہو نا. کوئی صحیح دلیل ہوگی تو کہو نا. ہو ہی کا دیا نہیں تم شروع سے. سنیے گا دوبارہ یہ سوال ڈرامہ، یہ بڑا پرٹیننٹ اس نے. سنیے گا دوبارہ یہ سوال، یہ بڑا پرٹیننٹ اس نے سوال کیا ہے. جو تھے مولوی اور وہ مبلغین جو تھے ان کو سن رہی تھی، لیکن ایسی کون سی ایک دلیل تھی جس نے آپ کا یعنی کہ بالکل مائنڈ آپ کا چینج کر دیا؟ بے بسی سننا اس کی بے بسی. ابو حسن بھائی بے بسی سنیں ذرا. اس کے اوپر میں کیا کہوں کیونکہ میں سبھی بھائی لوگوں کے براڈ پہ جانا اس شروع. کے اوپر میں کیا کہوں؟ اتنی دیر سے جھوٹ بولی جا رہی ہوں، اب پھر جھوٹ بولنا پڑے گا. چلو بول دیتی ہوں. 1 month ہو گیا، 1.5 month ہوا تھا. ان لوگوں نے ہاں نہیں ان لوگوں نے مجھے نکالا تھا. یہ جو میں جن کی براڈ پہ ہوتی تھی نا پی ٹی آئی والوں کی، تو ان کی براڈ پہ تو میں عمران خان کے اوپر بات کرتی تھی، میں تو جاتی ہی نہیں تھی. تو انہوں نے مجھے جب میں احمدیز کی براڈ پہ گئی اور میں نے ان کے ساتھ بات کی تھی نا سبھی بھائی اور ان لوگوں کے ساتھ، تو میں نے ان کو جب بولا کہ میں تو اس چیز کی میں قائل ہوں کہ وہ ان کو زندہ نہیں، وہ اٹھایا نہیں جا سکتا ان کو زندہ، تو وہ تو میں بھی مانتی تھی. تو جب میں نے ان کے ساتھ بات کی نا وہاں پہ اور بھی دوسرے نان احمدیز بھی تھے وہاں پہ، تو جب ان کے ساتھ بات کی ان کے ساتھ بات کی تو میرا تھوڑا سا ان کے ساتھ وہ ہو گیا. تو میں ان کو بتا رہی تھی کہ میرے علاوہ کس کو لگ رہا ہے کہ یہ لمبی لمبی چھوڑ رہی ہے؟ کسی کو لگ رہا ہے؟ ابھی کمنٹ کیجیے گا تھوڑی سی ویڈیو رہ گی، تھوڑی سی ویڈیو رہ گی، تھوڑی سی ویڈیو رہ گی، تھوڑی سی رہ گی، تھوڑی سی. اور کوئی ان لوگوں میں سے جو نان احمدی تھا جو میری براڈ کا تھا وہ میری باتیں سن رہا تھا. اس نے آ کے مجھے وہاں پہ وہ جب میری باتیں سنی اور اپنے لوگوں کو جا کے بتایا کہ یہ تو وہاں احمدی ملوں میں بیٹھی ہوئی ہے اور یہ تو احمدی ہے، میرے اوپر الزام لگا دیا اس نے. اور جب اس نے الزام لگایا میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا پڑے گا مجھے. جی ضرور. آپ یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کوئی بک پڑھی ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں پڑھا. ہٹا ساون کی گھٹا. ابھی دیکھنا، ابھی یہ سوال جو ہے نا اس نے ہے تو ایک لجنا نہیں کیا ہے، پر سوال بڑا پرٹیننٹ کیا ہے. کوئی بک پڑھی ہے؟ نہیں پھر آپ ان کی کچھ بھی نہیں پڑھا میں نے. تو پھر آپ ان کی امتی کیسے ہوئی؟ ہٹا ساون کی گھٹا. دوبارہ سنیں دوبارہ. ابو حسن بھائی آپ نے ادھر ادھر نہیں ہونا ابھی. ہاں ادھر ہی رہے، آپ نے ادھر ادھر نہیں ہونا. مائک میوٹ کرتے ہیں، آگے پیچھے کہیں نہیں جانا. کاشف بھائی معذرت ہے، ذرا وہ جس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں نا دھرنے کی، آصف بھائی ہلتے ہیں ادھر ادھر. میں نے اس لیے کہا تھا نا کہ ہاں ادھر ادھر نہیں ہلنا، آنکھیں کھول کے رکھنا. لو جی مائک میوٹ کریں، آ رہی ہے دوبارہ سے. مائک میوٹ کریں. ابو حسن بھائی مائک میوٹ کریں. کوئی بک پڑھی ہے؟ مسیح موعود علیہ السلام کی کوئی بک پڑھی ہے؟ نہیں تو پھر آپ ان کی کچھ بھی نہیں پڑھا میں نے. تو پھر آپ ان کی امتی کیسے ہوئی؟ مجھے نہیں پتا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا. لو جی الہام ہو گیا ان کو بھی. لو جی الہام ہو گیا ان کو بھی. کہہ رہی تھی مجھے خوابوں میں آتے تھے ہیں جی. اب ان کو بھی پہلے یہ کہہ رہی تھی مجھے خوابوں میں آتے تھے، اب ان کو بھی الہام ہو گیا. نہیں پتا، یہ تو خود بخود مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا. یہ تو خود بخود مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا. یہ تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں. احمدیہ کا بھی دعویٰ نہیں ہے. یہ میرا دعویٰ ہے، یہی تو میں بتا رہی ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دعویٰ غلط ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں. آپ کہنا وہ کہہ رہی ہے ہم نبی پاک کے امتی ہیں، تو آگے سے کہہ رہی ہے آپ ان کے ہیں نا. بہرحال
यार ध्यान से सुनो जी उस्ताद, ध्यान बिल्कुल इधर उधर है बहरहाल तुम्हारा। यार ध्यान से सुनो उस्ताद, ध्यान इधर उधर है तुम लोगों ये का। मेरा दावा है, यही तो मैं बता रही हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने गलत है। आप उनकी ना पढ़ी है नहीं मैंने नहीं पढ़ी, जी एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे जी। तो ऐसा ही है। और कोई उन लोगों में से जो नॉन अहमदी था, जो मेरी प्लॉट का था, वो मेरी बातें सुन रहा था। उसने आके मुझे वहां पे वो जब मेरी मेरी बातें सुनी और अपने लोगों को जाके बताया कि ये तो वहां अहमदियों में बैठी हुई है और ये तो अहमदी है, मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया इसने। और जब उसने इल्जाम लगाया, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे जी जरूर। आप ये भी जरूर बताइएगा कि आपने हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की कोई बुक पढ़ी है? नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने अभी तक। तो फिर आप उनकी उम्मती कैसे हुई? मुझे नहीं पता, ये तो अल्लाह ताला ने मुझे बताया है, मुझे खुद भी नहीं पता। ये तो खुद ब खुद मुझे अल्लाह ताला ने बताया। यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। एक्सप्लेन, अहमदिया का भी दावा नहीं है। अगर आप ये मेरा दावा है, यही तो मैं बता रही हूँ कि मुझे अल्लाह ताला आपका ने दावा गलत है। हम नबी नहीं। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। आप उनके ना बुक नहीं पढ़ी है? नहीं मैंने नहीं पढ़ी। जी बिल्कुल। बहरहाल बाकी बहन कोई बात करना चाहे तो कर लें। अच्छा मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरे थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर दें। प्लीज थोड़ा जब मेरी बात भी चुन लेना, जो थोड़ी सी तो चुन ले। 2 घंटे दिए तेरी ही सुनी जा रहे हैं। मैंने जब कुरान पढ़ा था ना, उसके अंदर ये जो अहमद लिखा हुआ है, ये इन्हीं के बारे में लिखा हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। दोबारा सुने। आप उनके ना बुक नहीं पढ़ी है? नहीं मैंने नहीं पढ़ी। जी बिल्कुल। बहरहाल बाकी बहन कोई बात करना चाहे तो कर लें। अच्छा मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरे थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि मैंने जब कुरान पढ़ा था ना, उसके अंदर ये जो अहमद लिखा हुआ है, ये इन्हीं के बारे में लिखा हुआ है। लखदी लानत, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मैं इस वजह से इनको मानती हूँ। मैं जो अहमद, मैंने उन्हीं को मानना है। मैं अहमद जो बोला हुआ है ना, वो इनके बारे में बोला हुआ है। ओहो, काश भाई ये वो ही है ना रंडी तिया रंडी। पता नहीं यार कौन है कौन नहीं, मेरे तो दिमाग फट रहा, मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, वीडियो इससे आगे नहीं चला सकता मैं। टिया नहीं है ये काशिफ भाई, ये सारा स्क्रिप्टेड है, ये खुद ही इसको लॉन्च किया है इन्होंने, ठीक है। और ये सारा ड्रामा खुद ही जो है ये देख लें, ये सारी चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं इस ऑडियो के अंदर। और या फिर ये जो अगर तो ये फॉर एग्जांपल आप कह लेंगे ये लड़की अगर कोई जानता नहीं इसको, तो ये भी हो सकता है कि ड्रामा कर रही हो बस ऐसे ही कादियानियों के साथ, ये भी हो सकता है। बहरहाल कुछ भी नहीं है, फारग है ये जो है ना, जो भी ये गुफ्तगू हुई है ना, सारी इसने ब्लंडर ही मारे हैं सारे इसके अंदर। और वो खुद भी देखे ना, वो जो इंटरव्यू लेने वाली हैं वो भी जो है वो उससे मायूस हो गई हैं, उसकी गुफ्तगू सुन के वो भी मायूस हो गई। जी कोई और भाई बात कर ले यार, मेरी तरह तबीयत नहीं ठीक ऐसी ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਸਿੱਧੂ ਸੀ। अस्सलाम वालेकुम। ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਜੀ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬਰਾੜ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਸ ਗਏ ਨੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਹਨੀਫ ਮਸੀਹ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਉਂ ਹਵਾਲਾ ਲੱਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ। जी जाल हक भाई करो गल। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ मेरा कैमरा ऑन है। जी नजर आ जी रहा है। भाई ये देखें अपना अबू हसन भाई और बाकी साथी, ये कल इन्होंने फोटो लगाई हुई थी और उसका टाइटल ये लिखा हुआ था, अहले सुन्नत वल जमात की एक बहन जमात अहमदिया में शामिल। माशाल्लाह नादिर ने ये लाइव लगाई हुई थी। लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। ये जो PAK और वाला कौन है, सी लेडी है वो?
ये यार गलत है। एक मिनट मुझे तो बात कर लेने दो ना यार। ये पीए के वाला ये गुस्ताख जिसको ये कह रही थी कि आप लोग तो, वो लोग तो गालियां निकालते हैं, आप लोग तो कभी गालियां नहीं निकालते, ये है ना जो गालीबाज है। याद है किसी को ये आईडी, ये गालीबाज? फिर ये याद है। मसरूर बैठा हुआ है। गलत है। हाँ ये मसरूर है, और यहाँ पे एक और भी है, ये बाकी उनके जवाब देने के लिए आए। तो ये देखिए, ये उन्होंने लगाया हुआ था कल बैनर। ये फोटो ओरिजिनल नहीं है, ये फोटो किसी और की है, ये नेट नहीं, से ये ली हुई है लड़की फोटो। की आईडी, कौन सी आईडी है उसकी, लड़की की? ये वाली है, ये नसरीन करके यहाँ नाम लिखा होगा, कहाँ की ये बैठी हुई है, नसरीन नसरीन शिराजी शायद, नसरीन शिराजी है शायद। ये ठीक हो गया। शराजी नहीं, शरारती। तो यार जो आईडी है वो बता दिया मैंने, अब करें बात आप लोग। लानतुल्लाहि अलल कातिबीन। ये सारा वो जैसे अबू हुसैन भाई बात कर रहे थे कि सारा प्लांटेड है। फैजान भाई हैंड फ्री ला दो, उस तरह ही गल करो, फिर वो किचर मिचर शुरू हो गया। अच्छा जी, हम सही है बस। हाजा बेहतर। वो आगे ना वो अबू हसन भाई, वो है नहीं हैदरियम, उसकी रोड पे ना वो एक खातून आई हुई थी। अब उसे ना वो एक किताब दिखा रहा है और कहता है जी अहले सुन्नत की किताब है, उसके अंदर से ना हज़रत उमर की वो कुछ चीज़ें बता रहा है। तो ये अहले सुन्नत की बड़ी मोतबर किताब है। मैं गुजर रहा था, अचानक ही ना मेरे सामने ब्रोड आ गई, मैंने ब्रोड ऑन की। अच्छा, ब्रोड ऑन करके ना मैं ऊपर पुल पे चला गया, मुझे ले लिया उन्होंने जल्दी। मैं ऊपर ब्रोड पे गया हूँ, मैं कही अच्छा, मुझे देख के ना उन्होंने वो बंद कर दी है किताब और ना बैनर दूसरा लगा लिया अपना आप। मैं कह जी वो किताब दोबारा कटो ज़रा सामने। अच्छा, किताब दोबारा निकाली है, फिर उनकी मैंने कोई ना वहाँ पे कोई 10 मिनट शतरोल किया है बैठ के। अब मुझे, मैं कहता नहीं, ये देखें इन्होंने, ये बड़ी मोतबर किताब है और किताब का मुसन्निफ़ कौन है? वो कोई इस्लामिया कॉलेज है, उसका प्रोफेसर है। उसको कह रहे हैं जी ये अहले सुन्नत की बड़ी मोतबर किताब है और ये अहले सुन्नत आलिम की किताब है बहुत बड़ी। फिर उसके बाद कहते हैं जी तारीख़ तिबरी के अंदर ये लिखा है। मैं कह जी तिबरी जो है सारी सही है, तुम्हें तिबरी का मुकदमा पढ़ा है? हाँ मैंने पढ़ा हुआ है। तो मैंने कहा इसकी सनद पेश करो। कहता है जी इनकी रवायतों की सनद नहीं होती है। अब ये काम है लोगों के वहाँ पे बैठ ओए गाना बंद कर ओए, ओ छोकरिया, गाना बंद करके रख, गाना नहीं लाना। पर ला छड़िया फैजान करो भाई, इन्हां नूं। आपने उस किताब का स्नैपशॉट लिया था, स्क्रीनशॉट? कौन सी किताब? और फैजान दिखा भाई रहे थे यार, मुझे याद इधर नहीं वो था। लजना वाली ब्रॉड चल रही थी, तुसी केड़े पासे ले गए हो ब्रॉड नूं यार? अच्छा सही हो गया, उसी लग रहा ਇੱਥੇ था ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਫਲਾਂ ਮਿਲਾ ਤਾ ਤਾਂ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਫਲਾਂ ਮਿਲਾ ਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਸੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਲਾ ਨੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਚਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। अबू हसन भाई मैं सुन रहा हूँ, मैं मौजूद हूँ सर। आ देखो की कहती है कितना अच्छा ए देखो आप उनको देखें। इतना जरा इस पे कमेंट करें ना ये हम आपसे आके आखिर में जो उसने क्वेश्चन किया है यहाँ पे, यहाँ मदीस की प्लॉट पे गई और मैंने इनके कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने अभी तक। हाँ ये कह रही कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने। और जब उसने इल्जाम लगाया, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे। जी जरूर, आप ये भी जरूर बताइए कि आपने हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की कोई बुक पढ़ी है? नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने अभी तक। तो फिर आप उनकी उम्मती कैसे हुई? मुझे नहीं पता, ये तो अल्लाह। चलो अबू हसन भाई जी मैं सुन रहा हूँ काशिफ भाई, मैं सुन रहा हूँ। वो क्या असल में वो क्या दी मेरे सर में ना दर्द बड़ी शदीद है, बड़ी शदीद दर्द है। ओए अच्छा 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 ओहो चलें फिर आप माइक म्यूट कर दें, आप आज छुट्टी करें, आराम फरमाएं। हाँ जी फैजान भाई सुनने जरा क्या कह रही है ये, सुन जरा। उनको जिंदा नहीं, वो उठाया नहीं जा सकता उनको जिंदा। तो वो तो मैं भी मानती थी। तो जब मैंने उनके साथ बात की ना, वहाँ पे और भी दूसरे नॉन अहमदीस भी थे वहाँ पे, तो जब उनके साथ बात की, इनके साथ बात की, तो मेरा थोड़ा सा इनके साथ वो हो गया। तो मैं इनको बता रही थी कि ऐसा ही है। और कोई उन लोगों में से जो नॉन अहमदी था, जो मेरी प्लॉट ये बार बार यही स्टोरी सुनाई जा रही है और लजनात जो है ना वो तंग आई पड़ी है। था, वो मेरी बातें सुन रहा था
उसने आके मुझे वहां पे वो जब मेरी मेरी बातें सुनी और अपने लोगों को जाके बताया कि ये तो वहाँ अहमदियों में बैठी हुई है और ये तो अहमदी है, मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया इसने। और जब उसने इल्जाम लगाया, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे। जी जरूर, आप ये भी जरूर बताइएगा कि आपने हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की कोई बुक पढ़ी है? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं पढ़ा मैंने अभी तक। तो फिर आप उनकी उम्मती कैसे हुई? मुझे नहीं पता, ये तो अल्लाह ताला ने मुझे बताया। जी जनाब। काशिफ भाई वो पिछो लाओ जड़ा उठाया नहीं जा सकता, थोड़ा ही पीछे करो। यार मौलवी तू पीछे का शौकीन है अला। ये तीनों थे, हाँ ना, तो इनसे मैं लड़के गई थी। इन तीनों से मैं लड़के गई थी। और अहमदीज है ना, तो मैं उनको, क्योंकि मैंने बचपन में मेरे पेरेंट्स ने भी अहमदीज के बारे में कुछ गलती बताया हुआ था, तो इस डैड ने बताया हुआ था, तो वो फिर मैं गलती सोचती थी, तो मैं वही चीजें जो मेरे माइंड में थी वही मैं बात उनके साथ करती थी कि आप लोग तो गलत है, देखें ऐसा तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, आप गलत है। मैं इनको कुछ गलत अल्फाज बोल के ना चली गई थी इनकी ब्रॉड से उस टाइम पे। और अभी जाके एक तकरीबन 9 months या 10 months हुए होंगे कि, या 10-11 months हो गए होंगे कि मैं इनकी ब्रॉड पे, मैं इनको देखती थी, कभी कभी सामने आ जाते थे, तो मैं हंसती थी आप लोगों के ऊपर ना, कि देखो कभी मैं गिर गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। जी सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। मैं ये आपसे सवाल करना चाह रही थी कि मैं भी आपकी तरह बाय बर्थ अहमदी नहीं हूँ, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि ऐसी कौन सी दलील थी कि जिसने आपके दिल को बदल दिया? वो तो चलें ठीक है, आप शुरू से सुन रही थी, अहले सुन्नत के जो थे मौलवी और वो मुबल्लिग उनको सुन रही थी, लेकिन ऐसी कौन सी एक दलील यानी कि बिल्कुल माइंड आपका चेंज कर दिया? इसके ऊपर मैं क्या कहूँ, क्योंकि मैं सभी इसके ऊपर मैं क्या कहूँ, इसके ऊपर मैं क्या कहूँ। क्योंकि पकड़ी लोगों की गई, ब्रॉड इसके पे ऊपर जाना क्या शुरू हुई थी, कहेगी? एक 1 month हो गया, 1.5 month हुआ था, तो इन लोगों ने, हाँ नहीं नहीं नहीं, उन लोगों ने मुझे निकाला था, ये जो मैं जिनकी ब्रॉड पे होती थी ना, पीटीआई वालों की, तो उनकी ब्रॉड पे तो मैं इमरान खान के ऊपर बात करती थी, मैं तो जाती ही नहीं थी, तो उन्होंने मुझे निकाल, जब मैं अहमदीज की ब्रॉड पे गई और मैंने इनके साथ बात की थी ना, सभी भाई और इन लोगों के साथ, तो मैंने इनको जब बोला कि मैं तो इस चीज की मैं कायल हूँ कि वो उनको जिंदा नहीं, वो उठाया नहीं जा सकता उनको जिंदा, एक तो मिनट वो तो मैं भी ऐसे रुक मानती जाओ, हूँ। तो जब रुक मैंने जाओ, रुक उनके जाओ। साथ बात की ना वहाँ पे, और ये बात थी। अच्छा, नहीं उठाया जा तकीर सकता, भाई, लेकिन ए जरूर उठा सकती है बहुत कुछ। दूसरे नॉन अहमदीज भी थे वहाँ पे, तो जब उनके साथ बात की, इनके साथ बात की, तो मेरा थोड़ा सा इनके साथ वो हो गया, तो मैं इनको बता रही थी कि ऐसा ही है। और कोई उन लोगों में से जो नॉन अहमदी था, जो मेरी प्लॉट का था, वो मेरी बातें सुन रहा था, उसने आके मुझे वहां पे वो जब मेरी मेरी बातें सुनी और अपने लोगों को जाके बताया कि ये तो वहाँ अहमदियों में बैठी हुई है और ये तो अहमदी है, मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया इसने। और जब उसने इल्जाम लगाया, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे। जी जरूर, आप ये भी जरूर बताइएगा कि आपने हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की कोई बुक पढ़ी है? नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने अभी तक। तो फिर आप उनकी उम्मती कैसे हुई? मुझे नहीं पता, ये तो अल्लाह ताला ने मुझे बताया, मुझे खुद भी नहीं पता, ये तो खुद ब खुद मुझे अल्लाह ताला ने बताया। ये तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, मैं एक्सप्लेन, अहमदिया का भी दावा नहीं है। अगर आप ये मेरा दावा है, यही तो मैं बता रही हूँ कि मुझे लेकिन अल्लाह आपका ताला ने, दावा गलत है। हम नबी नहीं, करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। आप आपने उनकी कोई ना, बुक नहीं पढ़ी है? नहीं नहीं तो मैंने नहीं पढ़ी। जी बिल्कुल, बहर बाकी बहन कोई बात करना चाहे तो कर लें। वो भी तंग आ गई है इसकी इस बातों से कि ये क्या बात कर रही है, पागलों वाली बातें कर रही है। कह रही है नहीं नहीं मैं नबी पाक की उम्मती नहीं हूँ, मैं तो इनकी उम्मती हूँ। अच्छा मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरे थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करने दें, क्योंकि मैंने जब कुरान पढ़ा था ना, उसके अंदर ये जो अहमद लिखा हुआ है, ये इन्हीं के बारे में लिखा हुआ है। मैं इस वजह से इनको मानती हूँ। मैं जो अहमद, मैंने उन्हीं को माना है। मैं अहमद जो बोला हुआ है ना, वो इनके बारे में बोला हुआ है। अब मुझे नहीं पता किस तरह से बोला है, लेकिन मैं इन्हीं को मानती हूँ।
ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ। लामहदूद लानत। यार थोड़े यार उस्ताद काशिफ जी, भाई ना चलाएं यार प्लीज, बस करता हूँ। उफ, ओ मेरे यार सोने यार रब्बा, शिया गर्ल आई है जी, शिया गर्ल बंद कर दी है जी, बंद कर दी है। ਬਰਾੜ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਚੁੱਕੋ ਬਰਾੜ। ਉਹ ਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤਰਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ, FM 200 ਆਫਟਰ FM 85। नहीं नहीं 85 तो ओरिजिनल है, क्यों बीइंग शिया द ट्रूथ, ये लख दी लानत, राफजियो कादियानियो लख दी लानत। चलो भाग जाओ यहाँ से, खबरदार दोबारा नजर आया तो पक्का ब्लॉक। चलो पक्का ब्लॉक। आड़ा सावन की गटा भाई, किसी दोस्त साथी ने बात करनी है तो ठीक, नहीं तो फिर मैं बाकायदा ब्रॉड का आगाज करने लगा। नहीं जी नहीं, टॉपिक तो कभी नहीं खत्म होगा, हम कादियानियों की चित्रोल जारी रहेगी, चित्र पढ़ते रहेंगे कादियानियों को, और साथ ही मिर्जा जूनियर की ब्रॉड। यार अभी लित्रोल करनी है अस्सलाम वालेकुम। जी, मलक अहमद साहब। मैं इधर वालेकुम ये सलाम। कहने आया हूँ, जो कादियानी है वो काफिर हैं, चाहिए जो मर्जी करे। अभी मेरे पास एक पहला जो बुरा आया था वो कादियानियों का आया था ना, उधर भी मैंने बोला आप लोग काफिर हो, वो आगे से और मैंने बोला तुम लोग जितना भौंक सकते हो भौंक लो। वैसे भी वो टट्टी में गिर कर मर गया था बेचारा, बेचारा तो उसको भी मलिक अहमद साहब, कादियानी के अलावा भी आजकल एक फितना चला हुआ है पाकिस्तान में, मिर्जा जेलमी का फितना, उसके बारे में क्या फरमाते हैं? मिर्जा भी जो है ना, ये कुछ न किताब पढ़ता है ना कुछ और, बस कहीं से इसके पास किसी को इसने कोई चीज़ बताई, वो आगे इसने ट्वीट कर दी, आगे आगे यानी बोल के चला जाता है। इसको भी कुछ इतना खास पता नहीं है, ये वैसे ही आता है। डंगर है डंगर। और ये किसी मस्जिद के जो इमाम होते हैं गली का, उसके साथ मुनाजरा नहीं कर सकते, ये बड़े मौलवी के साथ क्या मुनाजरा करेगा। उनको ना इन चीज़ों के बारे में ना पता नहीं होता। तो 4-5 बंदे ऐसे हैं जो कि टिकटॉक पे बैठ के, सोशल मीडिया पे बैठ के ना, तो ये बकवास करते रहते हैं, और हमारे लोगों को आगे से ना जवाब देना नहीं आता, जिसकी वजह से ये सर पे चढ़े हुए हैं। और बात ऐसी कोई नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ठीक फरमाया आप। कल मैंने बल्कि थोड़ी देर पहले मैं ये टिकटॉक पे ही देख रहा था, एक भाईजान बैठे हुए हैं माशाल्लाह, वो मेरे ख्याल से कराची की उर्दू बोल रहे हैं, या जर्मनी में होते हैं या पता नहीं कहीं पे। तो वो बोल रहे थे अबाउट फ़िरका ये वो, ठीक है। मुसलमान जितने भी हैं ना, मुसलमानों में फ़िरका शिरका कोई भी नहीं है। इस्लाम जो है ना एक पीसफुल जो है ना मज़हब है, ठीक है। तो ये लोग जो है ना, ये तो इस्लाम के दायरे में आते ही नहीं हैं, ठीक है। जो प्रिंटिंग, अल्लाह माफ़ करेगी, अभी वो बहना मेरी क्या कह रही थी कि कुरान पाक में अल्लाह माफ़ करे नौजुबिल्ला, जो ये इन्होंने तो ये चीज़ें जो हैं वो गलत बयानी में प्रिंट आउट की हुई हैं, ठीक है। ये तो अपने लोगों को बांटते हैं। अगर आप चले जाओ ना पीछे 2000 साल पीछे चले जाओ, या 3000 साल पहले, और ये फितना तब से स्टार्ट हुआ है, या गलत प्रिंटिंग तब से स्टार्ट हुई है कि मुसलमानों को इस चीज़ से शिकस्त दी जाए। जी जी, ये तो आपको पता है कि यहूदियों का शुरू से ही ये रहा है कि मुसलमानों को शिकस्त देने के लिए वो बिल्कुल, ऐसी ये एक ऐसी बहुत बड़ा चीज़ें प्रोपेगेंडा सामने है। लाते हैं। और सम टाइम मैंने ये देखा है कि कुछ लोग यहाँ पे सालम लेने के लिए, अल्लाह माफ़ करे हमारे मुसलमान हैं, और ये बगैरती का आगाज़ कर दिया। अल्लाह पाक जो है ना गर्क करे ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी हैं, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। और ये चीज़ें जो है ना, ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। सो
رائٹ ہو گیا. اچھا مرزا صاحب یہ مرزا قادیانی کا تو چلو علم ہے, مرزا جونیئر جیلمی کے بارے میں کیا رائے یہ ہے؟ رہا جی بیسیکلی سٹارٹ میں نا میں نے اس کی ایک دو ٹک ٹاک کے دیکھی تھی جب میں پاکستان میں تھا, تو میں نے اس کے بارے میں شروع میں نا میں بھی نا اس کی باتوں میں آیا تھا. ٹھیک ہے, سیدھی سی بات ٹھیک ہے, ہے. ایک اسٹریٹ فارورڈ سی بات ہے. میں نے کہا یار چلو کیوں نہ پڑھا جائے اباؤٹ دیز تھنگس. ٹھیک ہے, تو میں نے جب یہ چیزیں پڑھی ہیں, میں نے جب یہ چیز دیکھا کہ ایک انسان ہوتا ہے نا کہ وہ جو ہے نا کسی کو جال میں لاتا ہے نا بڑے پیار سے بڑے طریقے کے ساتھ, یہ وہ سین ہے. تو نعوذ باللہ کچھ باتیں اور کچھ چیزیں جو ایسی ہیں کہ وہ بہت ہی غلط طریقے پہ چل پڑے ہیں. ٹھیک ہے, باقی جڑا نا انہوں کو علم شلم کوئی نہیں ہے. اگر کوئی کلمہ کفر کہے اور اس پر ڈٹ جائے تو کیا وہ کافر ہوتا ہے یا مسلمان رہتا ہے؟ یہ آپ کو میرے سے بہتر پتہ ہے. نہیں مجھے تو پتہ ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں تو اس بندے کو مانتا ہی نہیں ہوں. اچھا. دیکھیں مرزا بھائی بات یہ ہے کہ ایک بندہ آپ مرزا اگر جو ہے نا کلمہ میرا اس کفر کے کہے, ساتھ نہ بلائیں. آپ مرزا دیکھیں, مرزا میرا نہیں لقب میں ہے, آپ کے شہزاد نام خان کے بولتے ہیں. ساتھ مرزا لکھا ہوا ہے, میں تو آپ کا نام نہیں جانتا نا, تو مرزا ہی کہنا ہے میں نے آپ کو. ہاں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں نا, یہ نہ ہو آپ اس کے ساتھ مجھے تشبیہ دے دیں نہیں یہ بھی مرزا ہے. نہیں. اچھا ایک سیکنڈ, مجھے نا کیمسٹ سے کال آ رہی کاشف ہے, بھائی توقیر بھائی آپ دیکھنا. میں ایک سوال کرتا ہوں. مرزا بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کو مرزا کے کون سے عقائد سے اختلاف ہے, یہ تھوڑا سا کلیئر کیجیے گا. سر بیسیکلی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں نے دیکھی ہیں کہ اگر آپ کا کوئی سینئر ہے, اس کے بعد جو اس کی جو اسلام کے بارے میں کچھ رائے ہوتی ہیں, اور جو قدیم زمانے کے ہمارے کلندرز ہیں, ٹھیک ہے, جنہوں نے اتنی باتیں کی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں آپ اس طرح بولتے ہو, اور جو بندوں کو آگے اچھے طریقے سے اسلام کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں, آپ ان کو غلط کر دیتے ہو نا, تو وہ یہ چیزیں غلط ہیں. آئی ایم رائٹ؟ نہیں وہ بات آپ کی جگہ صحیح ہے, لیکن سب سے پہلے تو بندہ توحید سے سٹارٹ کرتا ہے نا. بالکل. آپ کو اس معاملے میں کوئی چیز ایسی ملی کہ جو آپ کے نزدیک جو یعنی کہ غلط ہو؟ کافی چیزیں غلط بھی ہیں بھائی, اور کچھ چیزیں ٹھیک بھی ہیں. کون سی؟ یہی ہے کہ وداؤٹ ریسرچ آپ کسی کے اوپر کچھ بھی جو ہے آپ بول دیں. میرے بھائی اب غور سے سنیں. مرزا کہتا ہے کہ جی اللہ پاک نے آپ کو پیکیج دیا 60 سال آپ اللہ پاک کا دو تو وہ آپ کو منی گاڈ بنا دے گا. یہ شرکی عقیدہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ اللہ پاک کی ذات میں شرک ہے, چھوٹے چھوٹے یعنی کہ منی گاڈ بنانا معاذ اللہ. اور اللہ پاک اس عیب سے پاک ہے کہ وہ کسی کو خدا بنا سکے, کیونکہ اللہ پاک لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے نہ کوئی اس سے جنا گیا. ٹھیک ہے, نہ وہ کسی کو بیٹا بنا سکتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کو خدا بنا سکتا ہے, کیونکہ خدا کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. بالکل نو ڈاؤٹ, قدرت اس کی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر یہ اکثر یہ تعویل کرتے ہیں کہ جی وہ وہاں پر جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے, اس طرح تو پھر دوزخ میں بھی جو دوزخی ہوگا وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا, تو وہ پھر کس سائز کے گاڈ ہوں گے؟ بابر بھائی بیسیکلی آپ میرا پھر پوائنٹ سمجھے نہیں تھے. میں نے بھی یہی بات کی ہے کہ آپ جو ہے نا یہ جو چیزیں یہ شرک میں ہی آتی ہیں کہ آپ کسی کی عبادت کو یا کسی کے اوپر بھی آپ اٹھ کے بول دیتے ہو وداؤٹ ریسرچنگ, اور آپ قرآن پاک کے خلاف چلے جاتے ہو, تو یہ شرک ہے بہت بڑا. جی, اور میں کھل کے یہ چیز آپ کو واضح اس لیے نہیں کر رہا تھا, میں نے کہا بھائی جان کیا پتا باتوں باتوں میں کسی چیز کو سمجھ ہی جائیں. نہیں اچھی بات ہے. اپنا جو عقیدہ ہے نا, ہمارا عقیدہ چھپانے کے لیے, ہمارا عقیدہ ہے دکھانے کے لیے, تاکہ اور اسلام کی طرف آئیں لوگ, سیدھے رستے کی طرف آئیں. عقیدہ ہمارا ایمان جو ہے نا, ایمان ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کو نا ڈے بائی ڈے اسٹرانگ کرتا ہے, اور اس ایمان سے آپ کو جذبہ ملتا ہے ہر رسپانسبلٹی کا, اور اس ایمان سے آپ کو پیسفل رہنے کا جذبہ ملتا ہے, اور اس ایمان سے آپ کو محنت کا, اور اس ایمان سے ہی آپ کو عبادت کا جذبہ ملتا ہے, فیتھ. جی جزاک اللہ. کاشف بھائی کیری آن. چلے سر جی.
जेड़ा आउंदा है जाई चाउंदा है। काशिफ भाई वो रेडियो चला लें फिर। काशिफ भैया उतलियां 3 सीटां ते की दवाई खड़ी छिड़की है कोई, वो तो बंदा ही नहीं कोई, या तिलकनियां ने रंग कराया। जी शाहिद साहब। शाहिद साहब माइक खोलें। वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक। आप सुनाए कैसे हैं? ठीक ठाक है। शुक्र अल्लाह पाक का, बहुत करम। आप सुनाए मिर्ज़ा माशा कादियानी के बारे में क्या राय है आपकी? जी ਸਾਰਾ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਹੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਜਦੀ ਜਲਦੀ। ਤਕੀਰ ਭਾਈ जी जी ਇਹ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੱਗਦੀ ਏ। नहीं जेड़ा पीछे जांदा मैं उन्होंने ला देना। कितने ला देना? मैं लाया सारे तेनू अपना जी करी जा रहे हैं को फटाफट मैं ला। लाया है, मैं लाया है। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹੋ, जितने ਇੱਥੋਂ ਰਿਪੋर्ट ਲੱਗਦੀ ਜੇ। जिथों कप नजर आवे ठक करके बंदा थले। फिजान भाई मैं तुम ला रहा हूं उतली सीट ते आओ। अबू हसन भाई तुसी भी उतली सीट ते आओ। चलो जी फिर हुण प्रोग्राम शुरू करिए फिर। अबू हसन भाई उतली सीट ते आ जाओ ना भाजन। हाँ बस ठीक है, इत्थे तुसी बवो। चलो ਬਸ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸੀਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਸਹੀ। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया जनाब अली, ठीक हो गया। चलो यार मिर्जा जूनियर मिर्जा सीनियर के फॉलोअर्स इधर आओ यार, जल्दी करो। मिर्जा जूनियर को सच्चा साहब यार, शाहिद साहब की फरमाते हो तुसी? जी शाहिद साहब, शाहिद साहब बात करें, क्या बात करनी है आपने? जी पहले तो मैंने सलाम अर्ज किया है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी जनाब, तो दूसरी बात ये है कि प्लीज़ अगर आप माइंड ना करें तो ये कौन कह रहा था कि ये बंदा इधर से उठाओ और इधर अपना बंदा बिठाओ? क्या मैं आपका अपना नहीं हूँ? नहीं नहीं, वो कह रहे थे कि जो हमारी टीम के बंदे हैं ना, उनको ऊपर वाली 2 जगह जो है वहाँ पे अपनी टीम का बंदा बिठाया करें, वो ये कह रहे थे। अच्छा टीम, आपको नहीं कुछ कहा उन्होंने? फिर ये कहे ना कि जो हमारी टीम का बंदा है उसको इधर तो बिठाओ, यार ये टीम आपको का नहीं बंदा कुछ नहीं कहा, है। आप बात करें जिस बात के लिए तशरीफ लाए हैं वो बात करें। वो तो मुझसे कह रहे थे ना, फिर यार ये फिर आप बैग चले जाते हैं ना। चलो फिर अब नहीं, आपको अब हूं ना चुकी हो यार नूते। जी जी मतलूब साहब कॉल पर तशरीफ लाएं, आपको इसकी पढ़ी लिखी बातें बताते हैं। कॉल पर तशरीफ लाएं, जरा जल्दी आ जाओ, जल्दी 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 जल्दी। और ये जो अबू हुरैरा वाली आईडी से है, ये ना गूंगा होना चाहता है, ये गूंगा होने आया था यहाँ पे। नहीं जी शाहिद साहब आपको अब नहीं उठाना, माजरत के साथ आप बैक स्टेज चले जाते हैं, इससे ब्रॉड जो है ना उस पर फर्क पड़ता है। मेरा ख्याल है मैं इसको ब्लॉक ही कर दूं अगर अब इसने दोबारा डाली है तो। आखिरी चांस है शाहिद भाई, नहीं तो आपको ब्लॉक कर दूंगा इसके बाद में। आप कॉल मत डालें। आप बैक साइड चले जाते ना, आप मेरे ख्याल में वो करने रिपोर्ट करने आए हैं यहाँ पर। बात आपने करनी कोई नहीं, फालतू। चलो जी प्रोग्राम शुरू करते हैं। अभी देखो क्या होता है भाई, ये देखो भाई,
ये होने लगा है लैपटॉप ऑन. लैपटॉप तो ऑलरेडी ऑन है भाई. हाड़ा सावन गाड़ा. मिर्जा छिछोरा FM 200. ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕरें ਜੀ ਬਾਲੋ ਬੱਤੀਆਂ ਮਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਸੰਗਲਾ ਨਾਲ लो जी FM 200 शुरू होने वाला है जी. FM 200 हाड़ा सावन की घटा. पीछे गया इन्हें उतार दे नीचे इन्हें नहीं उठा उतारे उतारे जो पीछे जा रहा है सबको खुद ही उतार दे नीचे. फिर आ जाएंगे. ला दो थले. देखो ना 15 हो गए ने 16 दीजिएगा. लो जी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम शुरू हुआ चाहता है. पाकिस्तान में हो रहे हैं शाम के 4:03, यूके में दोपहर के 1:03 और सेंट्रल यूरोप में इस वक्त 2:03 हो रहे हैं दोपहर के. मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आपको लिए चलते हैं मिर्जा पाकिस्तान में जेलमी की तरफ. 6:03. अच्छा 6 बज गए. 5 घंटे का फर्क हो गया. आज जेलम अकेडमी में जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई जी इनको नहीं ऐड होने देना. FM 200 से मैं हूं काशिफ चौधरी. अभी आप देखेंगे लाइव मिर्जा कादियानी और मिर्जा जूनियर की चित्रोल. इंजीनियरिंग करके नया दीन ले चला. मिर्जा जूनियर मिर्जा सीनियर के फॉलोअर्स फौरन हाजिर हो जाएं. काशिफ चौधरी हाजिर हो चुका. चलो भी चलो मिर्जा जूनियर वाले और मिर्जा सीनियर वाले. अभी आपकी रीमा और रेशम और नीली यहाँ पर नाचेगी. मिर्जा जूनियर के फॉलोअर्स फौरन सामने आ जाएं. FM 200 से आप सुन रहे हैं काशिफ चौधरी को. इखलाक के दायरे में रहकर बात करेंगे तो इखलाक से जवाब मिलेगा. बदतमीजी करेंगे तो निकाले जाएंगे. आइए जो ख्वाब देखते हैं मिर्जा कादियानी के और जो मिर्जा जूनियर जहलमी के ख्वाब देखते हैं, आइए तशरीफ लाइए, आपको थोड़ा जगाएं. चार बाई चार के कमरे में बैठकर बड़ी बड़ी बड़के मारने वाला मिर्जा जूनियर जेलमी आज भी कमरे के अंदर बैठा चुड़पुड़ किए जा रहा है. मोज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आपको बहुत से मिर्जा जूनियर के फॉलोअर्स ये कहते होंगे कि सामने आकर बात करो मिर्जा जूनियर से, नेट पर बैठकर क्या लगे हुए हो. आपको 7 साल पहले की एक लाइव कॉल सुनाऊंगा जिसमें 4 बाई 4 के कमरे में बैठकर बात करने वाला मिर्जा जूनियर जेलमी उस्ताद मोहतरम जनाब मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी साहब की एक ही कॉल पर ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग. निकालो अपने जेहलमी को बाहर. सबूत तो मैं दूंगा शाका, सबूत तो मैं दूंगा.
اب आ जरा मैदान में ओ फिल्मियों कज़ाबी। FM 200 मैं हूँ काशिफ चौधरी। बदमाश था शैतान तभी ज़वाल है तू कादियानियों की कोई गुप्त तेरी जान है खबीस है खन्नास है दज्जाल बिन दज्जाल है तू कादियानियों की कोई गुप्त तेरी जान है जहलमी ओ मिर्ज़ा जहलमी निकलो बाहर मिर्जा कादियानी और मिर्जा जूनियर के फॉलोअर्स, सामने आओ और बात करो। काशिफ चौधरी मौजूद, अना मौजूद। हाँ भाई तारिक के मानने वाले भी नीचे आ गए हैं, शख्सियत परस्त भी नीचे आ गए। आओ शख्सियत परस्त तो आओ जरा बात करो। जहां में तू वबाल है। जहलमी जहलमी मिर्जा जहलमी। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके। मिर्जा कादियानी और मिर्जा जूनियर के फॉलोअर्स फौरन सामने आ जाएं। अभी मिर्जा कादियानी और मिर्जा जूनियर को नहलाएंगे और नचवाएंगे। इनकी रीमा, इनकी रेशमा, इनकी मा रीमा रेशमा अभी नहलाएंगे, अभी नचवाएंगे। मेरे साथ रहिए, अभी मिर्जा कादियानी की लितरौल शुरू होगी, मिर्जा जूनियर जेलमी की लितरौल शुरू होगी। जेलमी जेलमी मिर्जा जेलमी हो गया तेरी जुबान अरे शैतान। लो जी बाकायदा प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मुसलमानों को, कादियानियों, बदमज़हबों और बदअक़ीदा लोगों के लिए हिदायत की दुआ। गुजारिश है कि अगर आप बदतमीज़ी करना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 खुल के बदतमीज़ी कीजिएगा। आपकी रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन उससे पहले आप अपना नाम ज़रूर बताइएगा। पता नहीं कुछ लोगों में ये खासियत क्यों है कि वो अपना नाम छुपाते हैं, उनके वालिदैन ने जो उनका नाम रखा है उसको छुपाते